Good afternoon, everyone. So, today we will be taking up short notes of GS3 topic 9 infrastructure, energy, ports, roads, airports, railways, etc. So, now coming to the railways, Niti Aayog's strategy for New India at 75 says that India's speed of creating railways has increased from 7 km per day to 19 km per day. Then 100% electrification of broad gauge track is expected to be done by 2023. But railway has some issues like issues of cross subsidization. What is cross subsidization? Basically, railways gives subsidized fare to the consumers, the customers, and they increase their freight fare to subsidize this consumer section. So there are various committees which are recommending different measures to strengthen the railways finances, like विवेक देवराय कमेटी. तो इन्होंने क्या कहा है कि आप एक्सपेंड करिए इंडियन रेलवेज के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, those companies who are involved in creating railway coaches and other parts of railways. ठीक है. Then partial privatization कीजिए through retaining rail track, rolling stock operation and other parts, right? So privatization is one of the things that has been recommended by Vivek Devrai committee. Then judicious use of huge land. Railway has huge land bank. Anywhere you can see रेलवे के पास बहुत जमीन होती है, तो आप वो कह रहे हैं कि you try to use them judicially to create revenues for railways. Then withdraw from non-core sector. Like railway is also involved in running hospitals, schools. So Vivek Devrai committee is saying that these are non-core sectors and railways should not involve in all these things. Then decentralization करिए, streamline करिए recruitment को. That has already been done. IRMS बना दिया है. Then operating ratio. Operating ratio क्या होता है रेलवेज में? The ratio which says कि आप कितना रेवेन्यू अर्न करते हो और कितना खर्च करते हो. तो 94% है रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द लास्ट 10 years. दैट मीन्स वॉट एवर रेलवे अर्न्स 94% is again goes to expenditure, various kind of expenditure, right? Then railway transport 23 million passengers and 3 million tons of freight every day. Something, this data is coming from economic survey. तो वहाँ से आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा. ये एवरी डे का डेटा है मोस्टली, जहाँ तक मुझे याद है. देन व्हाट आर द वे फॉरवर्ड? सो थिंग्स टू बी डन. डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है. रेशनलाइजेशन ऑफ फेयर करिए. डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी चाहिए. फ्री फ्रॉम नॉन रेम्युनरेटिव एक्टिविटीज दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय विवेक देवराय कमिटी. देन एक्सपेंड करिए रेल नेटवर्क को. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करिए. ठीक है. Now coming to road. So road construction has basically two kind of vulnerability. One is the traffic risk, second is the land acquisition. These are the major issues, and more so it is a long term investment. So basically whoever comes to invest in road projects, they have to do it on a longer term basis, है ना. देन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मोड की बातें होती थी. पीपीपी मॉडल में आप रोड बनाइए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. देन बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल. सो दीज आर द प्रोमिनेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स फॉर रोड प्रोजेक्ट्स. देन नेशनल हाईवे अकाउंट फॉर 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया. सो नेशनल हाईवे इज स्टिल अ वेरी लेस percentage as compared to total road network of India. Then you can find out what are the percentage of state highways and village roads, district roads, etc. that you can find it out from internet. Then tax free infrastructure bonds की बात हो रही है.
रेलवे रोड में। बेसिकली रोड्स में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज फॉर द लॉन्गर टर्म। सो लॉन्गर टर्म में टैक्स also impacts investment very much. So tax-free infrastructure bond is an incentive for people to come forward and invest in road projects. Then infrastructure debt fund की बात हो रही है. So these are the prominent funding options for the road project. Then what further steps are needed? Revamp करिए investment model को, HAM मॉडल अपनाइए. HAM क्या होता है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, है ना, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके इस सम रिस्क शेयरिंग होती है, फाइनेंशियल रिस्क शेयरिंग होती है, रेवेन्यू रिस्क शेयरिंग होती है, समथिंग लाइक दैट. देन ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ FDI होना चाहिए इसमें. सेटअप करिए NIIF. व्हाट इज NIIF? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. देन स्ट्रीमलाइन करिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, रिलीज करिए, है ना, बेसिकली रिलैक्स करिए रूल ऑफ external commercial borrowing. Then insolvency and bankruptcy code is a good step for those companies who cannot pay back and where loan is turning into NPAs. Then monetizing vehicle like infrastructure investment trust banaiye. So these are the steps needed for the road projects. Now coming to infrastructure topic. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या करना है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने हैं. सम स्कीम्स लाइक भारतमाला, सागरमाला. यू कैन सी भारतमाला इज फॉर द नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है, राइट. देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ये पहले भी आ चुका है. फेम इंडिया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स is a future vehicle basically, because our reserves of petroleum are also limited, so we will have to find the alternative in future, है ना. So electric vehicles is one of them. Then economic survey क्या कहता है? Around $4.5 trillion worth of investment is required by India till 2040. So this is also a very important statement which can be utilized in answer writing. Then inland waterways, India has just 1.5%. China has 8.7% in waterways. वाटरवेज में इंडिया का बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट है. इंडिया हैज ह्यूज स्कोप ऑफ वाटरवे डेवलपमेंट. सागरमाला प्रोग्राम इज फोकसिंग ऑन दैट. Then logistic cost is 13 to 15% as compared to global average of 6%. Logistic cost is basically cost of transportation, warehousing, storage, right? So it plays very crucial role. तो इंडिया में logistic cost बहुत ज़्यादा है as compared to global average. It has to be reduced. Now coming to aviation sector. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डेटा कहता है that 1 to 1.2 million jobs can be created by 2025 in aviation sector. Aviation sector is still a very growing sector. Now people still prefers airways as compared to railways or roadways because of increase in cost of railway fare and decrease in cost of aviation fare, है ना. Then fuel cost, 45% of tariff cost amount to fuel cost. So fuel cost is a major hindrance in aviation sector to grow. Then 30% of at global level, right? So still it amount to 30% at global level also. तो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है but still global level पे भी it is a major cost contributing to the airfare. Then what are the challenges? High airport tariff loyalty and other charges. एयरपोर्ट पे जब भी आप यूज करते हैं तो एयरपोर्ट हैज वेरियस काइंड ऑफ टैरिफ, राइट, like user charges and other different taxes are also imposed, so that increases the cost of airfare and it is a major hindrance because of which people avoid. ठीक है.
देन शॉर्टेज ऑफ सर्टेन स्किल्ड मैन पावर इन सिविल एविएशन, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, एंड दैट टू इन सॉफ्ट स्किल्स, तो देयर इज a very shortage of that is also a major challenge. Recourse to overseas supplies of मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन फैसिलिटीज। इंडिया में अभी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ही लिमिटेड एवेन्यूज हैं। ज़्यादातर जो कुछ कंपनीज हैं दैट आर इन्वॉल्व इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट टू फॉर मिलिट्री, है ना। तो सिविल एविएशन में तो ऑलमोस्ट नील है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, तो बाहर से हमें मंगाना पड़ता है। हाई एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल, so that is also increasing the cost of airfare. Now coming to port sector handle around 90% of exim cargo, that is export import cargo by volume, and 70% by value. तो 90% जो है वो वॉल्यूम से और 70% वैल्यू से ये पोर्ट सेक्टर हैंडल करता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बन रहा है वाराणसी में, that is also one of the big projects. Then it double the share of freight transported by coastal shipping from 6% to 12% by 2025. That is what government is aiming for. गवर्नमेंट का एम क्या है कि जो भी कोस्टल शिपिंग से ट्रांसपोर्ट फ्लाइट ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, उसको 6 से 12% कर दें बाय 2025. Then reduce the turnaround time at major ports. This is also a turnaround time क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि बंदरगाह पे पूरी जहाज आई, माल लदी हुई जहाज आई, उससे फिर माल उतारना है, फिर माल दूसरा चढ़ाना है, फिर वो यहाँ से जाएगा, तो दैट बिकम्स अ टर्न अराउंड टाइम। तो हमारे यहाँ इतनी इफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं है, तो टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कई 3 महीने 2 महीने तक वो जहाज बंदरगाह पे ही रह जाता है। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मेजर हिंड्रेंस इन पोर्ट सेक्टर। नाउ कमिंग टू एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हमारा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि एनर्जी जो है वो दिखाती है कि आपकी कंट्री जो है वो किस रेट से ग्रो कर रही है ना। तो अगर आपका अभी भी एनर्जी कंजम्पशन 1/3 है ग्लोबल एवरेज से, तो स्टिल यू आर ए डेवलपिंग कंट्री। देन देयर इज ए टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ 175 गीगावाट बाय 2022, है ना। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारा INDC टारगेट भी है, उसको भी फुलफिल करेगा ये। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे हम। कुसुम स्कीम है डी डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं दे आर अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। देन SDG गोल 7, that is affordable and clean energy, that can be quoted in energy. Now you can see that हमने डिफरेंट डेटाज दिए हैं, थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रो, विंड एंड न्यूक्लियर। इसका एक आगे डायग्राम भी दिखाएंगे, तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हम एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं भी आएंगे वहाँ बना सकते हैं हम। थर्मल एनर्जी में कंट्रीब्यूट थर्मल कंट्रीब्यूट टू 64% ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल कंट्रीब्यूट टू 21%, हाइड्रो 15%, विंड 10% एंड न्यूक्लियर 2%। थर्मल में भी दो पार्ट हैं, कोल 54% करता है और गैस 10% करता है। रिन्यूएबल में सोलर 75% करता है, नॉन सोलर जो है वो 10% करता है। अभी ये देखिए डायग्राम की जो हमने बात की थी, तो ये वो डायग्राम है जहाँ पे हम दिखाते हैं रोड, रेल, वाटरवेज एंड पाइपलाइन, रुपीस पर टन किलोमीटर। अगर रोड से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं 1 टन माल को तो 3 रुपये लगेंगे, रेल से 1.5 रुपीज़ लगेंगे, वाटरवेज के 0.3 रुपीज़ लगेंगे, पाइपलाइन से 0.15 रुपीज़ लगेंगे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाता है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ अभी पिछले स्लाइड में हमने बात की थी, उसको ही डायग्रामेटिक फॉर्म में रखा है, चार्ट फॉर्म में दिखाया गया है। 63% यहाँ पे दिखाया गया थर्मल, पिछले में 64% था, ऑलमोस्ट सेम ही है। 21% रिन्यूएबल एनर्जी को 22 कर दिया गया है यहाँ पे। 12.6% हाइड्रो है, 1.2% न्यूक्लियर है, 0.5% अदर है। सोलर का 7.5% है, विंड का 10%, अदर का 4.5%। SDG 7 गोल जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट कैन बी कोटेड इन सोलर वाला। देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दैट टारगेट्स 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 years। तो ये आया था, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट
key term to be used in this infrastructure topic. Okay. Okay. Thank you all.